الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس کے ضمن میں آداب کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر بات کر رہی ہے کہ اگر انسان ادب آداب سیکھ لے تو تزکیے کی منازل طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ادب کیسے کیا جائے گا، کہ کیا کیا آداب ہیں، کن کن چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ 2-3 جمعے عرض کیا جا چکا۔ اللہ رب العزت کے بعد کس ہستی کا ادب جو ہے ہم پر فرض ہے، ہمارے ذمے ہے، وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی شریک نہیں اس کائنات میں، اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے وحدہ لا شریک۔ جس طرح اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ فرق صرف خالق اور مخلوق کا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت سے کے ادب کے بعد سب سے پہلا ادب ہونا چاہیے قرآن مجید کا۔ یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی پہلے حضور کی ذات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں حضور کے واسطے سے ملا ہے۔ جس کو حضور نے قرآن کہا ہم نے قرآن مان لیا، جس کو حضور نے حدیث کہا ہم نے حدیث مان لیا، بلکہ جس کو حضور نے اللہ کہا ہم نے اللہ مان لیا۔ کیونکہ ایسی اللہ کی پہچان بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوتی ہے، اور وہی اللہ کی وہی عزت، وہی ادب و احترام قبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن مجید اللہ نے براہ راست خانہ کعبہ کی چھت پہ نازل نہیں کیا۔ قرآن مجید قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے جن کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ قرآن کو کعبہ کی چھت پہ نازل فرما دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن اس امت تک پہنچا۔ اسے میرے خیال میں ترتیب میں
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आता है। कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है कुरान पहले रखा जाए, लेकिन बहरहाल ये मेरी अपनी एक राय है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस हमें मिलती है, इसलिए उन्हें तीसरे नंबर पर रखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब क्यों किया जाए, ये एक सवाल है। आसान जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इसलिए किया जाए क्योंकि अल्लाह इस अदब को सिखाते हैं। अल्लाह का हुक्म है, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह हुजुरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका तर्जुमा सुन लीजिए, आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुसलमानों को खिताब है, काफिरों को नहीं है। और कीजिए, ये मुझे और आपको खिताब है। ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को बुलंद न करो, फौक सौतिन नबी, नबी की आवाज पर। इस कायनात में कोई हस्ती है कि जिसकी आवाज से आवाज ऊंची हो जाए तो ईमान खत्म हो जाए? कोई भी नहीं। कितना बड़ा अदब है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि जिसकी आवाज भी नबी की आवाज से ऊंची हो गई उसका भी ईमान खत्म हो जाएगा। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और उनके सामने इस तरह बात न किया करो जिस तरह तुम आपस में ऊंची ऊंची आवाजें में बात करते हो। अदब देखिए, अदब से कौन अदब सिखा रहा है? खालिक कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक, हमारे मालिक खुद ये अदब सिखा रहे हैं। एक तो अब ख्याल करो तुम्हारी आवाज कहीं ऊंची ना होने पाए, और दूसरा यह ख्याल करो कि जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हो, जिस अंदाज में, वो अंदाज नबी के सामने नहीं होना चाहिए। हमारे अंदाज बदल जाने चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर तुमने इस पर अमल ना किया, क्या होगा? अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया होकर रह जाए। अल्लाह अकबर। अमाल कब ज़ाया होते हैं? जब इंसान इस्लाम कबूल करे और इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, खुदा न खास्ता इस्लाम छोड़ दे, तो उसके पिछले सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, फिर वो जीरो पे खड़ा हो जाता है। बैन ही उसी वही अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए कि जो नबी के अदब में कमी करेगा वो भी जीरो लाइन पे खड़ा हो जाए, उसके अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। तो अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें खबर भी ना हो। इसलिए मोमिनो एहतियात करो, ये एहतियात लाजिम है, ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है। ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी जगह आप हजरात हर जुमे के अंदर सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, इस बात को याद रखो, अल्लाह और उसके फरिश्ते वो भी हुजूर पर रहमत भेजते हैं, इसलिए तुम भी हुजूर पर सलातो सलाम भेजा करो। ये अदब कौन सिखा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये अदब सिखा रहे हैं। और आप कभी इस बात पे गौर करें, कुरान मजीद में सिर्फ 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर को नाम लेकर अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में, जिसकी 6666 आयतें हैं, सिर्फ 4 बार अल्लाह ने मुखातब किया। लेकिन इससे अलावा आपके मुख्तलिफ खताबात हैं, मुख्तलिफ जो आपके टाइटल हैं, मुख्तलिफ जो अलकाबात हैं, उनसे नाम लेकर मुखातब किया। ये क्या है? तरीका ये है कि अगर किसी को मैंने ज्यादा अदब और ज्यादा एहतराम देना हो तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बल्कि कहूँगा मियाँ साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, क्योंकि ऐसे होता है ना, नाम लेने से अवॉइड करूंगा, बल्कि उसका जो खताब है, जो अलकाब है, वो नाम लेके मुखातब करूंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में 4 मरतबा के अलावा बाकी हर जगह अलकाब की हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, या अय्युहन नबी। ये खताब हैं, ये अलकाबात हैं, वो अदब सिखाया जा रहा है कि नाम लेने से भी एतराज करो, नाम लेने से भी एतराज करो। वो जो शायर ने कहा है कि 1000 बार बिशोएम दहन ब मुश्क गुलाब,
1000 बार बिशोइम दहन बमुश्क गुलाब हनूस नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबियत, यानी मैं अपनी जुबान को, अपने दहन को, अपने मुंह को 1000 बार भी अर्के गुलाब से धो लूं, ए अल्लाह के रसूल, फिर भी आपका नाम लेना कमाल बेअदबी है हमारे लिए। हमारे मुंह, हमारी जुबानें कहाँ इस काबिल हैं कि मोहम्मद का नाम लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अदब सिखा रहे हैं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद नाम नहीं ले रहे, यानी 4 के अलावा नाम नहीं लिया। और भी बहुत से मौके हैं, कभी या अय्युर रसूल, कभी या अय्युन नबी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, ताहा, यासीन, मुख्तलिफ अलकाबात से खिताब किया जा रहा है। तो ये है अदब, यानी नबी, पहला इसमें यानी नुक्ता ये है कि नबी का अदब क्यों हमारे जिम्मे है। पहली बात कि खुद अल्लाह सिखाते हैं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, खुद इस कुरान मजीद का हुक्म है कि नबी का एहतराम किया जाए और आपका अदब किया जाए। मैंने अर्ज किया था कि अदब क्या है। अदब ये है कि जो ज़ाहरी तरीका होता है और एहतराम दिलों के अंदर होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोनों वाजिब हैं, ज़ाहरी आदाब भी और दिली एहतराम भी, दोनों के दोनों वाजिब हैं। और ये इससे सहाबा से बेहतर कोई और माई का लाल नहीं है जिसने हमें ये आदाब अमली तौर पर सिखाए। ये वाक़या तो मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने हैं तो आपके और मिंबर जो मुसल्ला रसूल जो हैं इमामत के लिए खड़े हुए, यानी अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी ही में हजरत अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया था। ये इस बात की इंडिकेशन थी, अलामत थी कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे। इमामत के मनसब पे खड़ा किया और जब हुजूर के बाद आप खड़े हुए तो ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि इस मुसल्ले पर जहां हुजूर का सजदा हुआ करता था वहां कहीं मेरा पाँव ना आ जाए। तो हुक्म दिया कि इस जगह पर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक हुआ करती थी वहां एक मोटी दीवार तामीर कर दी। और इतना एहतियात किया कि जब मैं खड़ा हूं तो सिर्फ उतनी जगह बचे जहां हुजूर के कदम मुबारक आया करते थे, ताकि जब मैं सिजदा करूं तो मेरी पेशानी हुजूर के कदमों के ऊपर पड़े। इसको कहते हैं अदब। हुजूर के मिंबर पे बैठे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर ख्याल आया मैं वहां बैठूं जहां हुजूर बैठा करते थे। एक सीढ़ी नीचे बैठे जहां हुजूर के कदम मुबारक हुआ करते, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की जिस सीढ़ी पर बैठते थे अबू बकर वहां नहीं बैठे। ये कैसे हो सकता है कि अबू बकर वहां बैठे जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे? तो जहां आपके कदम मुबारक हुआ करते थे अबू बकर वहां तशरीफ फरमा। अब उमर की बारी आई। उमर ने सोचा कि कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ अबू बकर, मेरी क्या हैसियत है। उमर उससे भी एक सीढ़ी नीचे बैठे जहां अबू बकर के पांव हुआ करते थे। सैयदना उस्मान की बारी आई तो आपने सोचा इस तरह तो मामला बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने मिंबर की सीढ़ियां ज्यादा कर दी ताकि वो ऊपर की तीनों सीढ़ियां ऊपर रह जाएं, नीचे इंसान बैठ जाए, ताकि ये बेअदबी ना हो। ये है आदाब, अदब व एहतराम। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं, मामूली रिश्ता नहीं है, हुजूर के चचा हैं। एक दफा बातों बातों में हुजूर ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बास चचा आप बड़े हैं या मैं बड़ा? यानी उम्र पूछना मकसद था। चचा आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? तो हजरत अब्बास ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, उम्र मेरी ज्यादा है। बड़े तो आप ही हैं, उम्र मेरी ज्यादा है। ये होता एहतियात, एहतराम। वो लफ्ज भी कहना गवारा ना किया कि जिसके अंदर मामूली सा शुबा भी हो जाए कि कोई अदब और एहतराम के खिलाफ हो गए। कि मेरे आका बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा है। यही इस हजरत अब्बास है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दी थी कि अपने घर का परनाला जो है मस्जिद की तरफ रख लें। मस्जिद नबवी के चारों तरफ मकानात हुआ करते थे। हजरत अबू बकर के घर का दरवाजा भी मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था और हुजूर के घर का दरवाजा भी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले ये वसीयत फरमाई
कि बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा खुला रहे। ये एजाज़ है अबू बकर का। जिनको लोगों को मस्जिद नबवी देखना नसीब हुआ है, वहाँ आज भी तख्ती लगी हुई है कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत अबू बकर के घर का दरवाज़ा हुआ करता था। इसी तरह सैयदना अब्बास को हुजूर ने इजाज़त दी कि तुम अपने घर का परनाला अगर इजाज़त है तो रख लो। उन्होंने रख लिया। हज़रत उमर नमाज के लिए तशरीफ ला रहे थे, इत्तेफाक से उस दिन उनके घर में 2 मुर्गे ज़िबा हो रहे, तो उनका खून चूंकि ज्यादा था, कतरे नीचे गिरे तो सैयदना उमर के कपड़ों पे पड़ गए। आपको ये नागवार गुजरा, दोबारा घर तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ानी थी, फिर कपड़े बदले, फिर आए और कहा कि इस परनाले को उखाड़ दिया जाए, क्योंकि खलीफा वक्त थे, हुक्म दे सकते थे। परनाला जो है उस जगह से उखाड़ दिया। नमाज हुई, नमाज के बाद सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए हज़रत उमर के पास। कहा कि उमर, आपको मालूम है कि जिस परनाले को आपने उखाड़ने का हुक्म दिया है तो लगाने का हुक्म किसे दिया? आपको मालूम है ये लगाने का हुक्म आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाहु अकबर। सैयदना उमर ये सुनकर खड़े हो गए कि अब्बास, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, चलो फौरी तौर पर इस परनाले को उसी जगह पर लगाएंगे जहां हुजूर ने ये लगाने का हुक्म दिया। फौरी तौर पर उनको पकड़ के ले गए। कहा कि अब्बास, इस तरह ये अब हक हासिल नहीं होगा, तुम अपने पाँव को उमर के कंधों पे रखो, उमर के कंधों पे रखकर इस परनाले को लगाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अमीरुल मोमिनीन उमर की कोई हैसियत नहीं है हुजूर के हुक्म के आगे। हुजूर हुजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म है, उमर की क्या हैसियत? उमर तो हुजूर के कदमों से बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फरमाया करते थे, उमर तेरी हैसियत क्या है? तेरा बाप तुझे इस बात में मारा करता था कि तुझे ऊंट चराने नहीं आते, और आज तू 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। ये मोहम्मद के कदमों का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर को अबू बकर सिद्दीक बनाने वाले हुजूर, उमर को फारूक बनाने वाले हुजूर, उस्मान को जुन्नूरैन बनाने वाले हुजूर, अली को हैदर करार बनाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर न होते, अरे आज हम किसी पत्थर को सजदा कर रहे, आज किसी दरख्त के सामने खड़े राम राम कर रहे होते। मेरे आका, ये आपका सदका है, आपकी जूतियों का सदका कि आज हम अल्लाह का नाम लेने वाले बने। सैयदना उमर ने कहा कि अब्बास, मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ, इस तरह बात नहीं बनेगी, मेरे कंधों पे खड़े होकर इस परनाले को वही लगाओ जहां हुजूर ने हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर का कोई एहतराम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं सिर्फ 2-4 मिसालें बता रहा हूँ आपको, वरना सहाबा की जिंदगी भरी पड़ी, किसी एक सहाबी को उठा ले। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर के साथ थे और हुजूर ने मुज़ाकरात के लिए मक्का भेज दिया कि जाओ मक्का के जो कुरैश है उनसे मुज़ाकरात करके आओ। मक्का के कुरैश के अंदर एहतराम था उनका। मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा कि ये देखो उस्मान, तुम आए हो तो ऐसा करो, तुम तवाफ कर लो, तुम इस मौका से फायदा उठाओ, तवाफ कर लो। हजरत उस्मान ने कहा, कैसी बात कर, हुजूर को तवाफ की इजाजत न हो और उस्मान तवाफ कर ले, ये किस तरह हो सकता है? काबा के दरो दीवार और काबा के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, लेकिन तवाफ नहीं किया कि जब तक हुजूर को इजाजत नहीं दोगे उस्मान तवाफ नहीं कर सकते। 2 बेटियां हुजूर ने उनके निकाह में दी और उनका आलम ये था, फरमाया कि जब जिस वक़्त से मैंने अपना हाथ हुजूर के हाथ में दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दायां हाथ, उस वक़्त से पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी अपना दायां हाथ शर्मगाह को नहीं लगाया। ये गुस्ताखी है कि जो हाथ हुजूर के हाथ से मस्त हो जाए मैं अपनी शर्मगाह को लगाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं और सहाबा आपके गिर्द जमा है और आपके वुजू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते। कोई अपने हाथों पे लेके चेहरे पे मल लेता है, कोई अपने हाथों पे लेके अपने जिस्म पे मल लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा सहाबा ये तुम क्यों कर रहे हो? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि हमें आपसे मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, इस हदीस से बड़े मसाइल निकलते हैं। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, लेकिन फरमाया कि मेरे सहाबा
जिसको मुझसे मोहब्बत हो वो हमेशा सच बोला करे, जो सही डायरेक्शन है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, जिसको मुझसे मोहब्बत है सही सच बोला करे, जिसको मुझसे मोहब्बत है वो धोखा ना दिया करे। लंबी हदीस है, लंबी बात इरशाद फरमाई। तो ये सहाबा की जिंदगी है, जहाँ से हमने सीखना है कि हुजूर का अदब किसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर ये अदब कायम है तब तक ये उम्मत कायम है। जब तक इस उम्मत के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, एहतराम, अदब और मोहब्बत कायम है, अल्लाह की कसम तब तक ये उम्मत कायम है। और जिस दिन ये भी निकल गया, ये उम्मत जो है कोड़ियों के भाव बिक जाएगी, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर आज दुनिया के अंदर को थोड़ी बहुत इज्जत है तो इसी नाम के सदके इज्जत। मशहूर जो मुस्तशरिक है, गालिबन मिनकुम्बी वाट है या एक और नाम है, विलियम मोर ने किताब लिखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, जिसने खुसूसन बकवास की, और ये एजाज हासिल हुआ सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह को कि उन्होंने उसका जवाब लिखा। विलियम मोर लिखता अपनी किताब के अंदर कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आज 1400 बरस गुजर गए, ये कैसी अजीब शख्सियत थी कि आज भी अपनी कब्र से करोड़ों मुसलमानों को कंट्रोल कर रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आज भी मुसलमान उनके नाम के आगे ऐसे ही सर झुका देते हैं जिस तरह उनकी जिंदगी के अंदर झुका दिया करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाल्लाह इस मौजू पे बात जारी रहेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम क्या है और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस ज़िम्मन में सुन्नत अदा फरमाई।